Very good morning, all of you, and welcome back once again to the series of lectures on rectification of errors. आज इस धमाकेदार सैटरडे पे हम धमाकेदार लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम फाइनली आज डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. So guys, let's start today's discussion. But before that, I would like to revise something. In full 9 lectures, the link of which I have already shared in the description box. All 9 lectures are posted over there. First, I request you to watch those and then only watch this lecture number 10. In lecture number 10, we are going to discuss how to prepare rectification entry when the error is located after preparing final accounts. Means after finalizing the accounts, when we go to the next year, and in the next year if error is located, how to pass the journal entry in the next year. Obviously you are not going to change the previous financial year. So but before that, let's summarize the topic. Location of error was important in our topic. Location of error was important. Location of error can be done. Location of error can be done before. Error can be located before preparing trial balance. It can be located after trial balance, but before final accounts. And last is after final accounts. Correct है बच्चों? Yes. So these are the three parts of this rectification of error topic. करेक्ट है क्या बच्चों? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी है. जहां पे आपको अकाउंट्स ओपन ही मिलेंगे, जाओ उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में गलती हुई है उस अकाउंट में गलती सुधारो. सिंगल साइडेड एरर है तो उस अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट करना है, नहीं तो डेबिट करना है. टू साइडेड एरर है तो और भी इजी हो गया. After trial balance means you have prepared a trial balance. You have prepared trial balance means you have closed all the ledger accounts, and then you located the error. Then there is no option to write down those rectification entries in the ledger accounts because the ledger accounts are already closed. So you will directly write journal entry and you will directly give the effect in new trial balance. Is it right or not? This we have discussed in the previous lecture also. Fine. But again, इसमें आप लेजर अकाउंट में भी जाके लिख सकते हो. अगर लेजर अकाउंट के पास बैलेंसेस जो कुछ भी है वो ब्रॉट डाउन उसी जगह पे करते हो तो. इज इट राइट? हाँ, तो टाइम बीइंग क्या करते हैं, जो कुछ भी डिफरेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में आता है जो सिंगल साइडेड एरर के कारण ही होगा, वो डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं टू मेक द ट्रायल बैलेंस टैली. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट रेक्टिफाइंग द एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट. तो सिंगल साइडेड एरर के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करना है. टू साइडेड एरर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जैसे फर्स्ट मेथड में टू साइडेड एरर की एंट्री करते थे वैसे ही सेकंड मेथड में भी टू साइडेड एरर की एंट्री करनी है. वन साइडेड एरर ही हमेशा आपको परेशान करेगा. वन साइडेड एरर मतलब क्या? वन साइडेड एरर मतलब बच्चों, जिस एरर में आइदर सिर्फ डेबिट छूट गया है नहीं तो क्रेडिट छूट गया है, डेबिट गलत हुआ है नहीं तो क्रेडिट गलत हुआ है. तो वन साइडेड एरर में पहले मेथड में यानी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जिस अकाउंट में आपने गलती की है उस अकाउंट में जाके उस अकाउंट को आप डेबिट नहीं तो क्रेडिट करते थे. बट आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वो अकाउंट आपका ओपन नहीं रहेगा, इसलिए आप टेम्पररी पीरियड के लिए डिफरेंस जो ट्रायल बैलेंस में आया था वो सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करके रखते हो. सस्पेंस अकाउंट में वही फर्क दिखता है जो वन साइडेड एरर के कारण होता है. टू साइडेड एरर्स कभी भी ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं लाते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ. एंड लास्ट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स. But before that, I need to discuss this. After trial balance, after trial balance, but before final accounts, whether the error is there or not, how will you understand it? If trial balance is tallied, I will not look at my accounts, all ledgers, I will not check once again. What I will feel that my trial balance is tallied and I'm going to prepare final accounts now. Why? Because trial balance is tallied means my accounting is over. Trial balance checks arithmetical accuracy of the accounts. Isn't it correct, my friends? Yes. So I will not look into all ledgers finding out the errors. Why? Because my trial balance is tallied and I will go for preparing final accounts. That is final. Is it right or not? But if trial balance is not tallied,
then what you do in this method, you have prepared trial balance, it is not tallied, then whatever difference is there, either credit side will be in excess or debit side will be in excess. So whatever difference is there, that you will post in a separate account called as suspense account. So what about this balance which you have posted in a suspense account? You will find out the errors after writing the balance in suspense account. So you will go for checking all the accounts, you will check all the ledger accounts, and you will find errors and you will locate it using suspense account. If the errors are single sided, your suspense account will get used for giving second effect, and automatically suspense account balance becomes nil. आपका जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली नील हो जाता है. बट बच्चों, अगर सस्पेंस अकाउंट नील नहीं हुआ, अगर एरर्स ही लोकेट नहीं हुए, पूरे अकाउंट मैंने 2-3 बार छान मारे हैं बट मेरे को एरर ही नहीं मिल रहा है, ऐसे होता है क्या? अरे बच्चों, कभी कभार पेन साइड में लगते हो, पूरा मोहल्ला ढूंढ के आते हो बट पेन नहीं मिलता है, बाद में पता चलता है कि पेन यहाँ पे है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे हो सकता है ना, अकाउंट्स में गलती है लेकिन पूरा मैंने ढूंढ लिया लेकिन मेरे को वो एरर ही नहीं मिला. तो क्या अभी अकाउंट्स रोक दूं जब तक एरर नहीं क्लियर होता है? गवर्नमेंट को मैं बोलूं क्या कि नहीं, मेरे अकाउंट्स में एरर है, जब तक अकाउंट्स क्लियर नहीं होता है तब तक मैं प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, तब तक इनकम टैक्स नहीं भरूंगा? अरे मोदी जी डंडा लेके आएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों, ये नहीं चलता है. अकाउंट्स तो हमें फाइनलाइज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट्स फाइनल करने के लिए अलग अलग कायदों में, अलग अलग लॉज में अलग अलग रूल्स बना के दिए हैं. तो अकाउंट्स हम पेंडिंग नहीं रख सकते. आर यू गेटिंग इट? तो जैसे कि कंपनी का अकाउंट 30 सितंबर के पहले फाइनल होना चाहिए, क्योंकि एजीएम लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ये मोहित सर आपको लॉ में सब नॉलेज देने वाले हैं. ठीक है, धीरे धीरे करके आपको कंपनी लॉ जब पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि अकाउंट्स फाइनल करने के लिए भी एक फाइनल डेट होता है, यानी P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए भी एक डेट दिया होता है. इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ डेट दी है जिसके पहले आपको इनकम टैक्स का सारा कामकाज कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स पे डिपेंडेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई कांट keep my accounts, final accounts pending because of these errors. Are you getting my point? So I have to go ahead. But if I analyze my trial balance, this is my trial balance, right? So in my trial balance, there are some incomes which will be showing credit balances. बराबर है ना? There will be some expenses which will be showing debit balances. ध्यान देना नलय को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्त एकदम. ये आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, तो एक्सपेंसेस होते हैं, देन इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ. कुछ अकाउंट एसेट्स के होते हैं जो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएंगे, कुछ अकाउंट्स लायबिलिटीज के होते हैं, ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे. यानी अगर मैं इन अकाउंट्स को दूसरे फॉर्म में समराइज करना चाहूं, ट्रायल बैलेंस के इन अकाउंट्स को मैं दूसरे फॉर्म में समराइज करना चाहूं, तो कुछ अकाउंट्स नॉमिनल होंगे, कुछ अकाउंट्स रियल अकाउंट्स होंगे, एंड कुछ अकाउंट्स कौन से होंगे बच्चों? पर्सनल अकाउंट. बराबर है क्या? मैं जो बोल रहा हूं बराबर है क्या? अब मुझे आगे जाके बोलो, पहले अकाउंटिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था, राइट? तो ये रियल अकाउंट्स कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे. ये सारे पर्सनल अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं. डेबिट बैलेंस होगा, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस होगा. डेबिट बैलेंस है तो इसको मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड को दिखाता हूँ, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको मैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाता हूँ. मानते हो कि नहीं? यस. और नॉमिनल अकाउंट का भी वैसा ही. रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा. बराबर है क्या? नॉमिनल अकाउंट का कैसा है? डेबिट बैलेंस होगा, नहीं तो क्रेडिट. डेबिट बैलेंस यानी एक्सपेंस एंड क्रेडिट बैलेंस यानी इनकम. बराबर है क्या? तो ये एक्सपेंस माइनस इनकम, जो कुछ भी नेट रिजल्ट है, दैट आई विल कॉल इट एज नेट प्रॉफिट, नहीं तो लॉस. दैट अगेन आई विल मर्ज इनटू दिस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, दैट इज कैपिटल अकाउंट. Isn't it correct, my friends? That again I will merge in capital account. So finally सब नॉमिनल अकाउंट्स कहाँ पे जाने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट में जाने वाले. ये पहले ही मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ा के रखी है. इज इट राइट? तो बच्चों, इसी बीच एक अकाउंट और आएगा, कौन सा? सस्पेंस अकाउंट. अब सस्पेंस अकाउंट का क्या चक्कर है? पहले समझ लो, सस्पेंस अकाउंट में 10,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है. बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं समझ लो. पहले समझ लो कि सस्पेंस अकाउंट में 10,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है.
ये क्रेडिट बैलेंस पूरा मतलब मैंने सब कुछ छान मारा मैंने बच्चों। सस्पेंस अकाउंट में सारे मतलब जितने भी अकाउंट्स है सब छान मारे। एरर्स निकल के सब रेक्टिफाई कर दिए। समझ में आ रहा है क्या? एरर्स निकाल के सब रेक्टिफाई कर दिए। अब एरर्स निकाल के जब मैंने रेक्टिफाई किया तो इस सस्पेंस अकाउंट को यूज करके मैंने रेक्टिफाई किया होगा ना। कुछ टू साइडेड एरर्स होंगे जो डायरेक्टली रेक्टिफाई हुए होंगे, और जो वन साइडेड एरर्स है उसको मैंने सस्पेंस अकाउंट यूज करके बराबर किया, और उसके बावजूद सस्पेंस अकाउंट में 1000 का बैलेंस रह गया। समझ में आ रहा है बच्चों? सस्पेंस अकाउंट में 1000 का बैलेंस रह गया। दिमाग जरा तेज करो अभी, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सुन लो। अब इस सस्पेंस अकाउंट में जो 1000 का क्रेडिट बैलेंस रह गया है वो आपको क्या बता रहा है? ट्रायल बैलेंस में बाकी ऊपर नीचे सब चेंजेस हो गए रेक्टिफिकेशन करके। कोई सेल्स रिटर्न की एंट्री रह गई थी तो सेल्स रिटर्न बढ़ गया, परचेस रिटर्न की एंट्री छूट गई थी तो परचेस रिटर्न बढ़ाया, परचेसेस का अमाउंट अंडरकास्ट किया था तो वो ठीक किया मैंने सस्पेंस अकाउंट यूज करके, सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट हुआ था तो वो ठीक किया, कुछ ड्रॉइंग्स की एंट्री रह गई थी वो ठीक कर दी। सारे रेक्टिफिकेशन करने के बावजूद भी सस्पेंस अकाउंट 1000 का बैलेंस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इसका मतलब है आपका अकाउंट्स अभी तक करेक्ट नहीं है। arithmetically it is not yet correct. There are some single sided errors which are yet to be rectified, which you have not yet found out. समझ में आ रहा है कि बच्चों अभी तक आपको वो एरर्स नहीं मिले हैं? और जाओ और अकाउंट छान मारो। अरे लेकिन कितना टाइम करूं सर, मैं 4 बार अकाउंट चेक करके बैठा हूं। तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? इफ यू आर टायर्ड, नहीं तो ड्यू डेट नजदीक आया कि आपको बैलेंस शीट अभी बनाना ही पड़ेगा, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। ये 1000 का जो कुछ भी बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में दिख रहा है उसको आप वैसे ही रख सकते हो। समझ में आ रहा है? उसको आप वैसे ही रख सकते हो। वैसे ही रखना मतलब सस्पेंस अकाउंट दिखना। अब ये सस्पेंस अकाउंट का जो कुछ भी बैलेंस है ये मैं कहां पे भेजू? कैन आई ट्रांसफर इट टू पी एंड एल अकाउंट? This is not my expenditure, this is not my income. Do you understand it? It is just a difference. I don't even know it, what this difference is coming out of, coming because of which transaction. I don't even know it. So how can I transfer it to expenditure, my friends? How can I transfer it to income if it is a credit balance? Are you getting it? I can't close it. Do you understand why I am discussing this point? Trial balance has nominal accounts, real accounts, and personal accounts. Personal accounts and real accounts will appear in balance sheet and will be transferred to the next year. That's why it is called as a balance sheet. Balances का sheet है वो जो next year को transfer किया जाता है. On the other hand, nominal accounts we set off against each other. Debit balance and credit balance we net it off, and the balance remaining will be called as a net profit, नहीं तो net loss, which will be merged into capital account. I hope you do get my point. Which will be merged in capital account. So my friends, tell me, अगर ये कैपिटल में मर्ज होने जा रहा है नॉमिनल अकाउंट का नेट बैलेंस, यानी नॉमिनल अकाउंट रहते ही नहीं है अकाउंट्स में, वो डायरेक्टली ऐसे एक दूसरे के सामने सेट ऑफ होते हैं। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सब माइनस होके जो कुछ भी नेट फर्क पड़ता है उसको हम प्रॉफिट नहीं तो लॉस बोलते हैं, वो जाता है कैपिटल में। यानी नॉमिनल अकाउंट का नामो निशान हम इसी साल में, जिस ईयर का एक्सपेंस है, जिस ईयर का इनकम है, उसी साल में उस अकाउंट को ओपन करते हैं और उसी अकाउंट को उसी साल में क्लोज भी करते हैं, जिंदा भी करते हैं और उसको मारते भी हैं। समझ में आ रहा है क्या? यानी नॉमिनल अकाउंट आगे नहीं बढ़ता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड यही तो है हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट। सारे नॉमिनल अकाउंट्स हम कहां पे भेजते हैं? फाइनली कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। इन कंपनीज केस वो रिजर्व एंड सरप्लसेस में बैलेंस दिखाते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, यानी सारे नॉमिनल अकाउंट्स ओपन होके क्लोज होते हैं। ये आप मानते हो कि नहीं? यस, समझ में आ रहा है बच्चों? तो मे बी ये 1000 रुपए का सस्पेंस अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मे बी सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर, सॉरी सेल्स लेजर नहीं बोलूंगा, सेल्स डे बुक आपका अंडरकास्ट हुआ था। समझो, ये मैं बात कर रहा हूं 1920 की, ये मैं बात कर रहा हूं 1920 की। 1920 यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, इस अकाउंटिंग ईयर में आपका सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट हुआ था। पूरा अकाउंट्स मैंने छान मारा बच्चों, बट ये सेल्स का जो गलती है मेरे को मिला ही नहीं। मैंने सेल्स अकाउंट भी चेक किया था, उस वक्त भी टोटल उसी तरह से आया, 1000 रुपए से अंडरकास्ट ही हुआ था। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी ये गलती डिटेक्ट ही नहीं हो रही है, तो डिटेक्ट नहीं हो रही है तो रेक्टिफाई कैसे होगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड?
तो बच्चों सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट हुआ है 1000 रुपीज से, मैंने फिर से ट्राई किया बट नहीं हो रहा है, तो सस्पेंस में फर्क रहेगा ना। सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट हुआ मतलब क्रेडिट हुआ ही नहीं सेल्स आपका 1000 रुपीज से, और अगर क्रेडिट नहीं हुआ लेकिन डेटर्स आपने उस वक्त डेबिट किया था 1000 रुपए से, तो बच्चों अगर डेबिट हुआ है और क्रेडिट नहीं हुआ है तो डेबिट आया डेटर्स में, यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट डेटर्स की अमाउंट 1000 रुपए दिखेगी लेकिन क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आएगा, तो ट्रायल बैलेंस क्या घंटा टैली होगा? होगा ही नहीं। तो 1000 रुपए का फर्क उस सस्पेंस अकाउंट में रहेगा। बच्चों समझ लो बात को, सस्पेंस अकाउंट को रहेगा। ध्यान दो, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अब बोलो 1920 का सेल्स अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है? सेल्स एक्चुअली रियल अकाउंट है, जो गुड्स का ही अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव नेम है सेल्स, बट फिर भी सेल्स अकाउंट का जो कुछ भी बैलेंस है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं, क्योंकि हमें गुड्स पे प्रॉफिट हुआ या लॉस देखना होता है, बराबर है। तो सेल्स अकाउंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट को भेज दिया, यानी सेल्स अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज कर दिया क्या? 1920 का सेल्स अकाउंट क्लोज कर दिया क्या रे नलाय को, बोलो ना। यस, तो 1920 का सेल्स अकाउंट क्लोज कर दिया, ये एरर डिटेक्ट नहीं हुआ था, ये एरर डिटेक्ट नहीं हुआ था बच्चों। तो 1920 का सेल्स अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग इट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ हम अकाउंट्स बनाएंगे, राइट। सस्पेंस में ऐसा ही फर्क रहेगा। अब ये सस्पेंस का फर्क P&L को नहीं भेजना है, इतना ध्यान में रखना। P&L को नहीं भेजना है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि ये क्या है। मेरे को अगले साल पता चला कि सेल्स अंडरकास्ट हुआ है, समझ लो बात को। तो अभी इस वक्त 31 मार्च 2020 के अकाउंट्स फाइनल करते समय मेरे को ये 1000 का फर्क क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा और इसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। अब ये क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में कहां पे दिखेगा? लायबिलिटीज में दिखेगा। चाहे वो डेबिट बैलेंस भी हो तो ये एसेट में लिख सकते हैं हम लोग। अब सस्पेंस अकाउंट है, कौन सा अकाउंट भाई? सस्पेंस मतलब क्या, मेरे को ही पता नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। यही एक सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट ये एक सस्पेंस है, ये बात समझ लो। तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो आप लायबिलिटीज में दिखा सकते हो, डेबिट बैलेंस है तो आप एसेट में दिखा सकते हो। लेकिन इमेजिन करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बैलेंस शीट आप पढ़ रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बैलेंस शीट आप पढ़ रहे हो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एसेट साइड, और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ऐसे लिखा है। शेयर होल्डर्स पटक पटक के मारेंगे आपको, इज इट राइट? क्या है ये सस्पेंस अकाउंट? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? एरर तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो जनरली ऐसे सस्पेंस अकाउंट फेस पे, बैलेंस शीट के फेस पे दिखाया नहीं जाता है बच्चों। एक तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट टैली होने वाली है, ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है, ठीक है। वहां पे मतलब एरर्स लोकेट होते हैं बच्चों, टेंशन मत लो, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे कभी कभार एरर्स होते हैं। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ मतलब एरर नहीं है, ऐसे किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, बराबर है क्या? ट्रायल बैलेंस टैली होके भी एरर हो सकता है, तो रेक्टिफिकेशन अगले साल भी हो सकता है एरर्स का, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। बट एनीवे, मैं आपको बता रहा था कि एसेट साइड पे ऐसे सस्पेंस अकाउंट दिखाना, नहीं तो लायबिलिटी साइड पे ऐसे सस्पेंस अकाउंट दिखाना बराबर बात नहीं है, दैट इज नॉट अ अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, we can transfer this 1000 rupees balance to capital account, because capital account is the only account which we can यूज इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। अभी हमें फाउंडेशन में प्रोप्राइटरशिप रिलेटेड ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, सस्पेंस अकाउंट को वैसे ही रखो, अगले साल ट्रांसफर करो। अगर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, कीप बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट ओनली, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ सस्पेंस टू कैपिटल अकाउंट। अब इंस्टीट्यूट कौन सा मेथड यूज करता है वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, हाँ ठीक है। दोनों भी मेथड्स है, आइदर ये सिलेक्ट करूंगा नहीं तो ये सिलेक्ट करूंगा। ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट में ही बैलेंस रखा तो आपको नेक्स्ट ईयर में सस्पेंस अकाउंट में ही वो एज ओपनिंग बैलेंस लेना है, वो बैलेंस P&L को ट्रांसफर नहीं करना, इतना समझ लो, ठीक है। हाँ, यानी उस अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, उसको हम अगले साल में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने वो बैलेंस कैपिटल को ट्रांसफर किया तो क्या होता है, मैं ये पहले आपको बता रहा हूं। सस्पेंस अकाउंट मतलब समझ में आया? पहले मैंने सस्पेंस को फर्क ट्रांसफर किया, फिर मैंने सब एरर्स डिटेक्ट किए, वो रेक्टिफाई करके भी अगर सस्पेंस में फर्क रह रहा है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? अभी भी कुछ सिंगल साइडेड एरर्स है जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो डिटेक्ट में भी अगले साल हो सकते हैं।
तो अगले साल होते हैं तो अगले साल उसको सुधारना पड़ेगा, तो वो सस्पेंस का बैलेंस सस्पेंस में ही रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1। नहीं तो आप उसको, वो सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट में अच्छा नहीं दिखता, इसलिए उसको आप कैपिटल में मर्ज कर सकते हो। तो उस केस में अगर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है और उसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है और उसको अगर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट ईयर एंड में एंट्री करेंगे हम, ईयर एंड में यानी 31 मार्च को एंट्री होगी, 31 मार्च को एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री में करूंगा। यानी मैं सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस टेम्पररी पीरियड के लिए कैपिटल अकाउंट में भेज रहा हूं बच्चों। सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस है वो टेम्पररी पीरियड के लिए मैं कहां पे भेज रहा हूं, कैपिटल अकाउंट में भेज रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, टेम्पररी पीरियड के लिए मैं उसको कैपिटल में भेज रहा हूं। समझो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, उस वक्त कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उस वक्त कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसी एंट्री कर देंगे और इस सस्पेंस अकाउंट का मामला हम सुलझा देंगे। अभी ये बैलेंस शीट में सेपरेटली नहीं दिखेगा, इधर कैपिटल बढ़ेगा नहीं तो कैपिटल घटेगा। अगर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस अगर पहले 10,000 है और ये 1,000 का सस्पेंस का बैलेंस है तो कैपिटल 11,000 हो जाएगा, बराबर है क्या, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे। समझो डेबिट बैलेंस होता तो कैपिटल घट जाएगा, 10,000 से 9,000 हो जाएगा आफ्टर पासिंग दिस एंट्री। टेम्पररी पीरियड के लिए लास्ट दिन पे ये एंट्री पास करनी है और इमीडिएटली इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर फिर से ये बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में लाके छोड़ना है, फिर से ये बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में लाके छोड़ना है। तो उस वक्त नेक्स्ट ईयर में पहली एंट्री में क्या पास करूंगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अगर सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस है तो। समझ में आया बच्चों, यानी अगर आपके बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखता है और अगर कोई पिछले साल का सिंगल साइडेड एरर आपको बताया जाता है तो आपको समझना है कि वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब वो कैपिटल को ट्रांसफर किया गया होगा। समझ में आ रहा है, हाँ। और अगर आपको बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखता ही है सस्पेंस अकाउंट तो टेंशन ही नहीं है, सस्पेंस अकाउंट में कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करना है, पिछले साल वो कैरिड डाउन करके लिखा जाएगा, नेक्स्ट ईयर में वो ब्रॉट डाउन करके बैलेंस लिख दिया जाएगा। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। हम अगर एरर्स डिटेक्ट नहीं होते हैं तो इस प्रकार से हम सस्पेंस अकाउंट के साथ डील करते हैं बच्चों, इस प्रकार से हम सस्पेंस अकाउंट के साथ डील करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगले साल एरर डिटेक्ट होने का चांस है। समझो उस साल में भी नहीं हुआ तो उसके अगले साल भी सस्पेंस अकाउंट में हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। जब तक एरर डिटेक्ट नहीं होता है तब तक वो बैलेंस सस्पेंस में ही रहेगा। टेम्पररी पीरियड के लिए आप उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो और फिर से उसमें से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर माय फ्रेंड? तो आपको ये समझ में आ चुका है? यस। तो सस्पेंस अकाउंट अगर आपको सेपरेटली नहीं बताया जाता है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया ऐसे मान सकते हो। आई होप यू इज अप टू दिस इट इज क्लियर। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैसे अगले साल ट्रांसफर किया जाता है आपको समझ में आया। दो ऑप्शन है, एक तो आप उसी अकाउंट में रख सकते हो, उसी अकाउंट में रखा तो सस्पेंस अकाउंट क्लियरली हेडिंग दिख जाएगा एसेट साइड में, नहीं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन ये तय है कि वो बैलेंस शीट में ही जाना चाहिए, उसको P&L में कभी भी नहीं भेजना है। सारे नॉमिनल अकाउंट्स हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं मैंने जो एरर डिस्कस किया था उसकी। अगले साल गए हैं, अगले साल यानी 2021 में हम जा चुके हैं। पिछले साल का 1,000 का सस्पेंस अकाउंट है, मेरे दिमाग में अभी तक वो फिट है, यार पिछले साल की एक गलती मेरे को लोकेट ही नहीं हुई, लेकिन बैलेंस शीट बनाने का डेट नजदीक आया था और वो स्टैट्यूटरी डेट होता है, बाय लॉ हमें उसके पहले बैलेंस शीट बनानी ही पड़ती है, इसलिए हमने वो बैलेंस शीट बना दिया बाय कीपिंग द बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट और ट्रांसफरिंग दैट बैलेंस इनटू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ट्रांसफरिंग दैट बैलेंस टू द कैपिटल अकाउंट है तो नेक्स्ट अगले साल पहली एंट्री आप क्या करो, उसे फिर से कैपिटल से निकाल के सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना मत भूलो। ठीक है बच्चों? हाँ, तो सस्पेंस में 1,000 का बैलेंस फिर से है, ऐसे समझ लो, सस्पेंस में 1,000 का बैलेंस फिर से है। खाई जा रही है बात, ये दिमाग मेरा, मतलब एक एरर मेरे अकाउंट्स में, एक अकाउंटिंग का एक्सपर्ट आदमी हूं मैं और मेरे अकाउंट्स में एरर जो पिछले साल डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर से मैं बैठा 1 तारीख पे, 1 अप्रैल से मैंने फिर से अकाउंट छान मारना शुरू कर दिया, नहीं तो जो कुछ भी डेट आपने बैलेंस शीट क्लोज किया उसके बाद अपने अकाउंट फिर से छान मारना शुरू कर दिया। पिछले साल के अकाउंट्स आपने फटाफट रेक्टिफाई नहीं, डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, एरर आप ढूंढने लगे। बहुत मेहनत करने के बाद आपको पता चला, अरे बाप रे, सेल्स की टोटल 1,000 से अंडर कास्ट थी। समझ में आ रहा है बच्चों? सेल्स की टोटल 1,000 से अंडर कास्ट थी। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? सेल्स का टोटल 1,000 से कम हुआ था। कौन से साल का? 1920 का, 1920 का। एरर डिटेक्ट कब हुआ? 2021 में। एरर डिटेक्ट कब हुआ बच्चों? 2021
2021 में। ध्यान देना बच्चों, प्लीज कृपया करके ध्यान देना। एरर डिटेक्ट कब हुआ? 2021 में। समझ लो बच्चों, एरर डिटेक्ट कब हुआ? 2021 में। क्या एरर है? सेल्स अंडर कास्ट बाय ₹1000। सस्पेंस अकाउंट का जो कुछ भी फर्क था वो मेरे को मिल गया। ठीक है, क्या है इसको सुधारते कैसे? हम जनरली कैसे सुधारते हो, अभी नए मेथड में कैसे सुधारना है मैं बताऊंगा। पहले इसके पहले मेथड में, यानी अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता तो आप क्या करते? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले बोल रहा हूं, तो क्या करते आप? सिंपली सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाते, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स ₹1000 सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखते, सेल्स ऑटोमेटिकली 1000 से बढ़ जाता आपका, बराबर है। लेकिन एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट होता, तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये एरर डिटेक्ट होता है, इसका मतलब हमने जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था इस एरर के कारण, वो हमने कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करके रखा था? सस्पेंस अकाउंट को। तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी हमारे पुराने वाले सेकेंड मेथड के हिसाब से सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हम लोग बाय 1000 टू क्या? सेल्स अकाउंट, बराबर है क्या बच्चों? 1000 ये एंट्री मैं कर देता पुराने वाले मेथड के हिसाब से। अभी भी यही ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी सस्पेंस अकाउंट में 1000 का बैलेंस मेरा पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो ये तो तय है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकलना चाहिए ना। एरर मिल गया, बधाई हो, 1000 रुपए का सस्पेंस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस था वो आप डेबिट करके वो सस्पेंस अकाउंट तो हटा दूंगा मैं, क्योंकि सस्पेंस मेरे बुक्स में अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। इज इट राइट? तो एरर तो क्लियर हो गया बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, और मैंने समझो पिछले मेथड की तरह ही सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए। बात को समझो, ये एंट्री बराबर है बच्चों। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये एंट्री गलत है, लेकिन ये सेल्स कौन से साल का है बच्चों? 1920 का या 2021 का? बच्चों ये सेल्स है 1920 का। 1920 के अकाउंट्स तो फाइनल हो चुके हैं, अब पीछे जाके एंट्री नहीं करना है 19 कुछ भी करने का, लेकिन 1920 के अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाने का। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि इट इज साइंड बाय डायरेक्टर्स एज वेल एज ऑडिटर्स, सब लोगों ने साइन किया है, उस पर मोहर लगाया है, और वो सब जगह पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सब सबमिट कर दिया है वो फाइनल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अभी उसको चेंज करने का नहीं, अभी जो कुछ भी चेंज होगा वो 2021 में ही होने वाला है। चेंज हमें कहां पे करना है? 2021 में। कंसेप्ट समझ लो बच्चों। लेकिन ये एंट्री करता हूं, समझो 2021 का सेल है 10 लाख रुपए, मतलब 2021 में एक्चुअली मैंने गुड्स बेचे हैं 10 लाख रुपए के, और ये एंट्री अगर मैं करता हूं तो सेल फिर से बढ़ जाएगा 1000 से, और सेल हो जाएगा 10,01,000 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलना शुरू करूं, ये एंट्री ऐसे ही पास करता हूं, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको समझ में आई ना? हाँ, तो ये एंट्री ऐसे ही पास करता हूं, और मैं अगर बोलना शुरू करता हूं 2021 का सेल्स मेरा है 10,01,000 रुपए, तो क्या ये सही रहेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2021 का सेल 10,01,000 अगर मैं बोलूं तो क्या ये सही रहेगा? आंसर इज नो। यू कांट मर्ज सेल ऑफ 1920 in the year 2021. Why? Because that will be a wrong accounting. Whatever costs appearing on the debit side of your P&L account are the costs of the sales which you are making in the year 2020-21. You just can't add sales of 1920 in the year 2020-21. That will be a false. You can do it, but that will be a false presentation, because 2021 में पिछले साल का सेल अगर इंक्लूड होता है तो आपका प्रॉफिट जो आपने 2021 का निकाला है वो कंप्लीटली गलत होगा ना। वो 2021 का प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसमें 1920 का 1000 रुपए प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी 1920 का प्रॉफिट तो गलत किया ही है आपने। क्यों? क्योंकि पिछले साल ही ये सेल्स दिखता तो पिछले साल का प्रॉफिट 1000 से ज्यादा दिखता, लेकिन अभी वो गलती किया है उसका वो छोड़ दो, अभी वो मैं सुधार नहीं सकता हूं। मैंने बहुत ट्राई किया था पिछले साल में, वो पिछले साल की तो गलती सुधर नहीं सकती है, और लेकिन वो गलती सुधारने के लिए करंट ईयर में गलती करोगे क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करंट ईयर का प्रॉफिट तो ठीक से दिखना चाहिए, तो इसीलिए हमें करंट ईयर का प्रॉफिट अलग से निकाल के दिखाना है, और ये जो आइटम है ये भी मैं प्रॉफिट में ही ऐड करूंगा। नो डाउट इट विल बी एडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली,
बट इसको सेपरेटली प्रेजेंट करना है बच्चों, इसको सेपरेटली प्रेजेंट करना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो बच्चों इसको सेपरेटली प्रेजेंट करना है, मतलब क्या करना है? अब सेल्स अकाउंट को हाथ नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको क्लोज किया जाता है। तो मैं आपको अभी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने जा रहा हूं। जिन अकाउंट्स को आप लोग क्लोज करते हो ईयर एंड को, जिन लेजर अकाउंट्स को आप लोग क्लोज करते हो, वो अकाउंट्स अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में आते हैं, वो अकाउंट्स अगर आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में आते हैं, तो उस अकाउंट को आप रिप्लेस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, नहीं तो प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंट, इस नाम से प्रायर पीरियड अकाउंट्स, ऐसे इस नाम को यूज करोगे आप लोग। मतलब जिस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट आता है, जिस रेक्टिफिकेशन एंट्री में, पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री पुराने तरीके से ही बनाओ, पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री पुराने तरीके से ही बनाओ आप लोग, ठीक है। लेकिन आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर कोई नॉमिनल अकाउंट, नहीं तो एक ऐसा कोई अकाउंट जो आप ईयर एंड को क्लोज करते हो, उसमें कौन से अकाउंट्स आते हैं? सारे नॉमिनल अकाउंट्स तो आएंगे ही, प्लस कुछ गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स आएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ये अकाउंट्स आपके एंट्री में आते हैं जिसका डायरेक्टली करंट ईयर के प्रॉफिट पे इंपैक्ट होने वाला है। अगर वो अकाउंट्स में वैसे ही लिखता हूं तो करंट ईयर के सारे फिगर्स गलत हो जाएंगे, पिछले साल के एरर के कारण करंट ईयर के सारे फिगर्स गलत हो जाएंगे, और वो गलत ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सेपरेटली डील करेंगे। ये जो कुछ भी एरर्स है जो पिछले साल के हैं, जो करंट ईयर में डिटेक्ट हुए हैं, वो सुधारने के लिए हम करंट ईयर के नॉमिनल अकाउंट्स को यूज नहीं करेंगे। सर नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में ही ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चों सारे रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट जो पिछले साल से आगे आए हैं, जो पिछले साल से आगे आए हैं, वो बैलेंस लेके ही आए हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो पिछले साल का ही बैलेंस गलत था। रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं बच्चों। नॉमिनल अकाउंट्स का समझ में आया आपको? नॉमिनल अकाउंट्स अगर आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में आते हैं, नहीं तो ये जो गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स है, वो अगर आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में आते हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों? तो आप उसको सुधारने के लिए एक दूसरा अकाउंट यूज करोगे। यू विल नॉट यूज सेल्स अकाउंट हियर, यू विल यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यू विल यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चों मतलब एंट्री कैसे करनी है? अगर सेल्स अंडर कास्ट बाय ₹1000 है पिछले साल में, और इस साल में एरर लोकेट होता है, तो ये रेगुलर तरीके की तरह सस्पेंस अकाउंट तो यूज करेंगे ही, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पिछले साल से आगे इस साल में हमने कैरी फॉरवर्ड करके रखा है, तो सस्पेंस अकाउंट तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सेल्स लिखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सेल्स अगर लिखता हूं तो लोचा हो जाएगा, करंट ईयर का सेल्स भी बदल जाएगा। ये करंट ईयर का सेल्स नहीं है, सो आई कांट यूज सेल्स अकाउंट नाउ। व्हाई? बिकॉज सेल्स अकाउंट वाज क्लोज्ड। 1920 का सेल्स अकाउंट वाज क्लोज्ड इन द प्रीवियस ईयर। 1920 का सेल्स अकाउंट वाज क्लोज्ड इन द प्रीवियस ईयर। सो हाउ कैन आई राइट सेल्स अकाउंट नाउ? सेल्स अकाउंट में लिख नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स करंट ईयर का है बच्चों, ये सेल्स का नया खाता आपने खोला है 2021 के लिए, वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो कौन सा यूज करो? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया ना मैंने आपको, कौन सा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं तो और एक अकाउंट इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया है, कौन सा? प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम ऐसे ही लिखना है, टू प्रायर पीरियड आइटम। बट इंस्टीट्यूट ज्यादातर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखता है बच्चों, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये 1000 रुपए में पी एंड एल एडजस्टमेंट में भेज दूंगा। इज इट क्लियर? अब सर ये पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्या करते हैं हम लोग? बच्चों ये पी एंड एल एडजस्टमेंट हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। मतलब इसके बाद और एक एंट्री करते हैं हम लोग, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों? समझो, अभी बात को समझ लो। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बहुत ही इजी डिस्कशन है। फिर से रिपीट करता हूं। सेल्स अंडर कास्ट बाय ₹1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री होगी। बट सेल्स अकाउंट पिछले साल का है, ये सेल पिछले साल का है, जो पिछले साल अंडर कास्ट हुआ था। तो पिछले साल का सेल अकाउंट मैंने पिछले साल ही क्लोज करके उसको ऐसे रफा दफा करके जीरो कर दिया था। तो अभी पिछले साल का सेल अकाउंट तो मैंने आगे ट्रांसफर नहीं किया है। आर यू गेटिंग इट? तो पिछले साल का सेल अगर आगे ही ट्रांसफर नहीं किया है, तो इस साल का सेल अकाउंट यूज कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो, इट इज नॉट अलाउड। Why? Because this item is of previous year. You can't use sales account which you have opened in the current year as a new fresh account. As a new fresh account. Why? Because पिछले साल का जो कुछ भी था वो पिछले साल ही आप क्लोज करके आगे आए हो। पिछले साल के कुछ अकाउंट्स आगे आए हैं। कौन से? सारे रियल अकाउंट्स आगे आ चुके हैं एंड सारे पर्सनल अकाउंट्स ही आगे आ चुके हैं।
यानी आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल से ही आगे कंटिन्यू हुए हैं। बट सारे नॉमिनल अकाउंट्स पिछले साल में क्लोज हो चुके हैं और इस साल में जो नॉमिनल अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं वो सारे नए नवेले चकाचक नए अकाउंट्स है। उसमें अभी गलती गंदा नहीं करना है, ठीक है? वो अकाउंटिंग गंदा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट बदल जाएगा। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट मेरे को चकाचक चाहिए इस साल का, ठीक है? पिछले साल की गलतियां सुधारो, इस अकाउंटिंग ईयर में सुधारो, उसको कोई ना नहीं बोल रहा है। सिर्फ जो कुछ भी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप बनाते हो उसमें अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं तो ये गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट, मतलब कौन से परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 रियल अकाउंट अगर आपके जर्नल एंट्री में आते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री में आते हैं, तो उन अकाउंट को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में इफेक्ट एक एक करके ऐड होता जाएगा। इधर पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट होगा, नहीं तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा। उसके बाद पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो कुछ भी बैलेंस रहता है वो एक तो आप करंट ईयर के पी एंड एल में सेपरेटली दिखा सकते हो एज अ सेपरेट हेडिंग। पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया था, उसको आप कैपिटल को ट्रांसफर करो। पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो कुछ भी बैलेंस रहता है उसको आप कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करो। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल एडजस्टमेंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, देखो एक ही एरर था ना हमारा, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ। अब इसको पी एंड एल एडजस्टमेंट को डेबिट करूंगा फिर से और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। इस पे मैं फिर से आऊंगा, इस पे मैं फिर से आऊंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं तो दूसरा ऑप्शन, उसको करंट ईयर के पी एंड एल में, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब वो कैसे दिखेगा बच्चों? यहाँ पे सेल्स दिखेगा, ये सिर्फ 2021 का सेल्स रहेगा, ठीक है? यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस 2021 के आएंगे। फिर करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकलेगा, ये नेट प्रॉफिट 2021 का ही रहेगा। और उसके बाद ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू करंट ईयर्स पी एंड एल अकाउंट, ऐसे एंट्री करोगे आप। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? ये पी एंड एल अकाउंट है मेरा करंट ईयर का, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। मतलब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैरिड डाउन हुआ और मैं फिर से यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2021 का ब्रॉड डाउन करूंगा। समझो ये 1000 रुपये आया, तो इसके बाद में एक सेपरेट लाइन, सेपरेट आइटम यहाँ पे दिखाऊंगा बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। यानी लोगों को समझ में आएगा कि अरे ये तो पिछले साल की गलतियां थी जो इस साल सुधार के 1000 से प्रॉफिट बढ़ाया, बराबर है क्या? अब ये दोनों नंबर 2000 टोटल हो जाएगी। अब ये दोनों नंबर कहाँ पे जाएंगे? फाइनली हम प्रॉफिट कहाँ पे भेजते हैं? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, कैपिटल अकाउंट। मतलब ये 1000 इसमें ऐड होके डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऑप्शन नंबर 1 है जो इंस्टीट्यूट के थ्योरी में बताया है। अगर थ्योरी दिखाऊं मैं आपको तो उन्होंने बोला है कि इसको करंट ईयर के पी एंड एल में सेपरेट लाइन ऑफ आइटम दिखाओ जो पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस है। यानी सारी गलतियां जो पिछले साल की थी जिसमें नॉमिनल अकाउंट्स आए हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री में, उन नॉमिनल अकाउंट्स को आप रिप्लेस करोगे पी एंड एल एडजस्टमेंट के नाम से। और वो पी एंड एल एडजस्टमेंट का जो कुछ भी अमाउंट है, नेट बैलेंस डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाने के बाद, वो आप डायरेक्टली करंट ईयर के पी एंड एल में सेपरेटली ऐड करो आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट ईयर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है बच्चों? बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट ईयर प्रॉफिट दिस पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस विल बी एडजस्टेड। प्रॉफिट है करंट ईयर में और वो भी पिछले साल का सब रेक्टिफिकेशन करके प्रॉफिट दिख रहा है नॉमिनल अकाउंट्स का, तो हम प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड करेंगे और दोनों प्रॉफिट कैपिटल को भेजेंगे, दोनों प्रॉफिट कैपिटल को भेजेंगे। यानी इनडायरेक्टली पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस यहां पे मिक्स होके कैपिटल में ही जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि उसको डायरेक्टली कैपिटल में भेजो। इंस्टीट्यूट ने कभी कभार ये भी मेथड यूज किया है, इंस्टीट्यूट ने कभी कभार ये भी मेथड यूज किया है। दोनों भी मेथड सही है बच्चों, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आ रहा है? यस। तो दोनों मेथड में कोई गलती नहीं है, दोनों भी बराबर है। मेथड्स है बच्चों, डायरेक्टली कैपिटल को भेजोगे तो भी चलेगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में सेपरेटली ऐड करके भेजोगे तो भी चलेगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, सेल में ऐड नहीं करना है, एक्सपेंस में ऐड नहीं करना है। पिछले साल का खर्चा अलग रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर का खर्चा अलग रिकॉर्ड करेंगे। ये इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान में रखना बच्चों ये रूल, मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पिछले मेथड की तरह ही बनाऊंगा और उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट दिखता है तो उस नॉमिनल अकाउंट के नाम के सामने मैं क्या लिखूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं तो और बोल रहा हूं, और मतलब समझ में आता है ना? नहीं तो दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं उसके सामने? प्रायर पीरियड आइटम, ऐसे लिख सकता हूं। प्रायर पीरियड आइटम लिखा तो पी एंड एल एडजस्टमेंट मत लिखो। पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा जो इंस्टीट्यूट ज्यादातर करती है, तो प्रायर पीरियड आइटम मत लिखो।
हाँ, लेकिन ये पी एंड एल एडजस्टमेंट में अभी एक ही गलती थी इसलिए वो ठीक हो गया सब। पी एंड एल एडजस्टमेंट में 1000 का क्रेडिट बैलेंस आया, उसको डेबिट करके मैंने कैपिटल में भी भेज सकता हूँ, नहीं तो करंट ईयर के पी एंड एल अकाउंट में उसको सेपरेटली मैं ऐड कर सकता हूँ, सारा कैलकुलेशन करंट ईयर का हो जाने के बाद। बस हो गया, दिस इज इट। सर किसी एंट्री में अगर नॉमिनल अकाउंट आया ही नहीं, बात करता हूं उसका एक एग्जांपल देता हूं। अभी यही एग्जांपल, सस्पेंस अकाउंट में 1000 का फर्क है पिछले साल में, अब गलती सिर्फ अलग करता हूं मैं, चलेगा क्या? अब ये सेल्स का जो कुछ भी मैंने बताया वो 5 मिनट के लिए जरा सा भूल जाओ, वो 5 मिनट के लिए भूल जाओ। यही एग्जांपल, ये मेरा पिछले साल का ट्रायल बैलेंस है, पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में 1000 का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। अब गलती क्या है, ये 1000 की गलती क्या हुई थी, डेटर्स एक क्रेडिटर को क्रेडिट नहीं किया, यानी परचेसेस रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक बट अ क्रेडिटर वाज नॉट क्रेडिटेड। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? पिछले साल क्रेडिटर को क्रेडिट करना मैं भूल गया, यानी परचेस डेबिट हुए बट क्रेडिटर क्रेडिट नहीं हुआ, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो पिछले साल वो क्रेडिटर के पास से जो कुछ भी मटेरियल मैंने खरीदा हुआ था वो सब मैंने रिकॉर्ड किया, सिर्फ ये 1000 रुपए रिकॉर्ड करने रह गए। अब उस पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिटर मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट में होगा कि नहीं? समझ लो वो पिछले साल 10,000 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है, उसको 10,000 रुपए अभी भी पे करना बाकी है, ठीक है। ऐसा पिछले साल का ट्रायल बैलेंस है, उस क्रेडिटर का खाता कितना बैलेंस दिखा रहा है? 10,000। तो ये क्रेडिटर का बैलेंस मैंने पिछले साल एज अ क्रेडिटर कहां पे दिखाया होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और इस साल के अकाउंट्स में इसको मैंने एज अ ओपनिंग बैलेंस लिया होगा, इस साल के अकाउंट्स में इसको मैंने एज अ ओपनिंग बैलेंस लिया होगा। बराबर है क्या? ध्यान दो रे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट भी करना है तो कुछ कमेंट भी करो, और अगर कुछ क्वेरीज वगैरह है तो वो भी पूछो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल के साथ ये कंसेप्ट और बेहतर होता जाएगा। एक मिनट, मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ। चलो एनीवे, यहाँ पे थोड़ी जगह मिल गई मेरे को। तो मिस्टर एक्स पिछले साल का जो कुछ भी बैलेंस था वो मैं यहाँ पे एज अ ब्रॉट डाउन कर लूंगा, बाय बैलेंस, क्रेडिटर है ना तो क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 10,000। यानी पिछले साल ही वो 11,000 होना चाहिए था, क्योंकि एक परचेस मैंने उसके खाते में क्रेडिट नहीं किया, परचेस रिकॉर्ड किया बट उसके खाते में क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया, उसके कारण ही ट्रायल बैलेंस में 1000 का फर्क पड़ गया था, जो मैंने सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करके रखा था। अब वो सस्पेंस अकाउंट भी मैंने अगले साल ट्रांसफर किया है ना, इधर वो कैपिटल में से मर्ज करके अगले साल आया होगा, नहीं तो डायरेक्टली सस्पेंस करके ही आया होगा। अगर कैपिटल में से मर्ज करके आया होगा तो मुझे 1 तारीख को फिर से सस्पेंस अकाउंट में एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? पिछले साल मैंने क्या एंट्री पास की होगी? पिछले साल सस्पेंस को क्रेडिट बैलेंस था तो सस्पेंस को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था। इस साल के बिगिनिंग में यानी 1 तारीख को मैं फिर से वो एंट्री रिवर्स कर दूंगा, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसे मैंने एंट्री की होगी। तो बाय कैपिटल अकाउंट 1000, समझो आपने सस्पेंस अकाउंट में ही बैलेंस रख के यहाँ पे भेजा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1000। दोनों भी बराबर है मेथड, ठीक है बच्चों। तो 1000 का बैलेंस आ गया। अब जरा बात को समझ लो, ये साल की शुरुआत में मेरे को नींद नहीं आ रही है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट 1000 का बैलेंस दिखा है, पूरे अकाउंट्स मैंने फिर से रिपीट कर दिया वही प्रोसेस, और उसके बाद मेरे को पता चला कि ये मिस्टर एक्स को क्रेडिट करना भूल गए थे हम पिछले साल में, ठीक है। चलो इस साल मिस्टर एक्स को क्रेडिट करेंगे, तो टू मिस्टर एक्स, चलो यहाँ पे नहीं लिखना है, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ टू मिस्टर एक्स। पिछले साल जो पार्शियल इफेक्ट देना रह गया था 1000 रुपए का मिस्टर एक्स को, वो अभी मैंने दे दिया। क्या मिस्टर एक्स का अकाउंट आपके बुक्स में ओपन है जो पिछले साल से आया है? यस, बिकॉज मिस्टर एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, यू डोंट क्लोज पर्सनल अकाउंट्स, यू डोंट क्लोज पर्सनल अकाउंट माय फ्रेंड्स, यू डोंट क्लोज पर्सनल अकाउंट्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो मिस्टर एक्स को तो क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट किसको करूंगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मिस्टर एक्स का वही अकाउंट हम आगे लेके आए हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट ये पुराने वाले तरीके से ही एंट्री की ना मैंने। पिछले साल ही अगर ये एरर डिटेक्ट होता तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट करते और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते बाय 1000 रुपीज। इस एंट्री को पूरा आंखें फाड़ फाड़ के देख लो बच्चों, ये सस्पेंस अकाउंट का कोई रूल ही नहीं है, ये तो डेबिट होगा ही, क्योंकि ये पिछले साल में सॉरी ट्रायल बैलेंस में फर्क है, तो सस्पेंस अकाउंट 1000 से डेबिट होगा ही। मिस्टर एक्स को क्रेडिट करना ये बराबर इफेक्ट है, तो मिस्टर एक्स को मैं क्रेडिट कर देता हूं। मिस्टर एक्स एक पर्सनल अकाउंट है, तो आपके एंट्री में पर्सनल अकाउंट आता है,
no tension. Why? Because that is the entry of rectification in the next year also. Why? Because Mr. X का खाता नेक्स्ट ईयर में भी आ चुका है. अगर वो जीरो हुआ है पिछले साल में, पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपका अकाउंटिंग गलत है तो उसमें कुछ तो बैलेंस दिखेगा, वो नेक्स्ट ईयर में जरूर आएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में एज इट इज बैलेंस शीट में लिखता हूं और नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर करता हूं. रियल अकाउंट्स का भी वैसे ही है, वो भी नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं. पिछले साल का ही अकाउंट अगेन आगे आया है. सर पिछले साल में सेल्स अकाउंट भी था, इस साल में भी सेल्स अकाउंट है, लेकिन नलायक को वो पिछले साल का सेल्स अकाउंट 1920 का था, वो मैंने क्लोज करके ट्रेडिंग में भेजा था, याद करो. और फिर करंट ईयर में एक नया सेल्स अकाउंट खोला मैंने जो जीरो से शुरू हुआ. ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होता है सेल्स अकाउंट में, परचेस में कभी से जीरो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है. सारे नॉमिनल अकाउंट्स को छान मारो, कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा उसमें. अगेन आई रिपीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट, नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं. तो नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस कभी भी नहीं होता है बच्चों. वो नए नवेले अकाउंट होते हैं, करंट ईयर के लिए निकाले जाते हैं. उसमें पिछले साल का मिक्स करके क्यों खराब कर रहे हो करंट ईयर का अकाउंट्स. तो इंस्टीट्यूट एज वेल एज अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या बोलती है कि ये जो नॉमिनल अकाउंट पिछले साल के आपने क्लोज करके आप आगे बढ़ चुके हो, और करंट ईयर में अगर पिछले साल की एरर डिटेक्ट होती है तो वो एरर के लिए आप एक सेपरेट हेडिंग यूज करो. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नहीं तो प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंट. वो सेपरेटली हेडिंग यूज करोगे और वो रेक्टिफिकेशन एंट्री जैसे पीछे करते आए हो वैसे ही रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी. रेक्टिफिकेशन एंट्री में जरा भी चेंज नहीं है. सिर्फ उस रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करने के बाद सोचना है कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स आए, और उसमें अगर कोई नॉमिनल अकाउंट, एक तो सस्पेंस आएगा अगर डबल सिंगल साइडेड एरर है, तो डबल साइडेड एरर है समझो, डबल साइडेड एरर है, ठीक है. तो भी आपको दोनों अकाउंट, जैसे कि पिछले साल में, सॉरी पहले सिंगल साइडेड एरर का खत्म करता हूं. सिंगल साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट एक तो आएगा ही, दूसरे दो अकाउंट्स भी आ सकते हैं. वो दोनों अकाउंट्स को देखो, एक अकाउंट आ सकता है, नहीं तो दो अकाउंट आ सकते हैं, नहीं तो तीन अकाउंट आ सकते हैं आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में. वो सभी अकाउंट्स को चेक करो. सस्पेंस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सस्पेंस का बैलेंस भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया है. हाँ, तो बचा कौन सा? बाकी के जो अकाउंट्स है आपके एंट्री में, वो आपको देखना है कि वो नॉमिनल अकाउंट्स है क्या. नॉमिनल अकाउंट्स नहीं तो गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स है क्या. गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स यानी परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड सभी नॉमिनल अकाउंट. ये सभी अकाउंट्स अगर आपके एंट्री में आ रहे हैं, इसमें से कोई अकाउंट आपके एंट्री में आ रहा है, तो उसकी जगह पे सिंपली आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, ये हुआ इसका कंसेप्ट. और ऐसे क्यों करना है? क्योंकि पिछले साल के एरर के कारण करंट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होना चाहिए. बच्चों समझ में आया? तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट ईयर. यानी नेक्स्ट ईयर में पिछले साल का अगर कोई गलती रेक्टिफाई करते हो, तो वो पिछले साल की गलती के कारण करंट ईयर के प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. इसीलिए हमें एक अकाउंट फिर से ओपन करना पड़ता है. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नहीं तो प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट. ठीक है, तो बच्चों इसकी थ्योरी इंस्टीट्यूट ने कितनी दी है वो देख के आपको पता चलेगा. मैंने पूरा अभी लगभग 1 घंटा हुआ मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ. ठीक है, पूरे 45 to 50 मिनट्स आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग विथ यू. बट इंस्टीट्यूट ने इसको कितने टाइम में सम अप किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना है बच्चों आपको. आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट. आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, बिफोर फाइनल अकाउंट बोला है. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आगे बढ़ता हूँ बच्चों. उसमें 2 एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए, 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, और कल के लेक्चर में भी एक किया था. अब आगे बढ़ता हूँ. करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ पे दिया है. समटाइम्स द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर. समझ में आया? व्हाई? बिकॉज आई वॉज अनेबल टू फाइंड आउट द एरर इन द प्रीवियस ईयर. मेरे को मजा नहीं आता है आगे जाके रेक्टिफिकेशन करने में, नहीं हो पा रहा था इसलिए आगे गया मैं. इज इट क्लियर टू यू? यस. इफ द एरर इज डिटेक्टेड इन द करंट ईयर, carrying forward, if error is not detected in the current year, then only I will do the rectification in the next year. Carrying forward the balance in the suspense account or even transferring it to the capital account. दोनों मेथड समझ में है? बस इतना ही बताया है. आप वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, और इवन, और बोला है, और इवन ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल अकाउंट. हाँ, यहाँ पे कौन सा एरर दिया है देखो. सपोज द परचेज बुक वॉज कास्ट बाय ₹1000 इन December 2015. शॉर्ट कास्टिंग हुआ था, यानी टोटलिंग 1000 से कम हुआ परचेस बुक का. अब परचेस बुक का टोटलिंग 1000 से कम हुआ, यानी डेबिट साइड में फर्क पड़ा होगा. परचेस अकाउंट आपका 1000 से डेबिट कम हुआ होगा,
तो डेबिट साइड में फर्क पड़ा होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा। तो हमने उस वक्त क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था विद द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो ये 1000 का फर्क ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस देगा, बराबर है क्या। इफ द एरर इज रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर, द एंट्री पास इज टू डेबिट परचेस अकाउंट, एंट्री में कोई फर्क नहीं है बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट करोगे नेक्स्ट ईयर में, बराबर है क्या, एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट करोगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में 1000 का फर्क हमने ट्रांसफर करके रखा था, बराबर है क्या। इट विल मीन दैट द परचेसेस फॉर द ईयर 2016, ये 2015 में एरर हुआ था, लेकिन 2016 का परचेस आपका 1000 से ज्यादा दिखेगा, बराबर है क्या। 2015 का परचेस 2016 में क्लब हो गया, more than the amount relating to the year 2016, and thus the profit of the year 2016 will be less than the actual profit of that year। तो 2016 का जो कुछ भी प्रॉफिट था करेक्ट वाला, वो गलत हो गया आपके पिछले साल की गलती के कारण, जो नहीं होना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट बोलता है। thus the correction of errors in this manner will falsify the profit and loss account। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2016 का भी गलत, 15 का तो पहले से गलत ही था आपका, 1000 से 15 का प्रॉफिट कम ही दिख रहा है आपका, बराबर है, ज्यादा दिख रहा था, जो 2016 में इफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा, ये बराबर बात नहीं है। टू अवॉइड दिस, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट्स कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट्स, दैट इज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, शुड बी थ्रू अ स्पेशल अकाउंट स्टाइल्ड यानी नेम्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पिछले साल के जो कुछ भी नॉमिनल अकाउंट्स वाले चेंजेस हैं, वो आप एक स्पेशल अकाउंट यूज करके ही कैरी आउट करोगे। उस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नहीं तो प्रायर पीरियड आइटम्स। द बैलेंस इन द अकाउंट, अब इसकी बात हो रही है, ये प्रायर पीरियड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा आफ्टर रेक्टिफाइंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली। हाउएवर, these prior period items should be charged after deriving the net profit of the current year। तो आपको ये क्लियर कट बताया गया है कि करंट ईयर का नेट प्रॉफिट करंट ईयर का इनकम माइनस करंट ईयर का एक्सपेंसेस लेके ही करो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस, नहीं तो प्रायर पीरियड आइटम का बैलेंस सेपरेटली ऐड करो। ऐसे कौन बताता है इसका, अगर मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो आपको इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नाम का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, जिसमें आपको ये प्रायर पीरियड आइटम में के बारे में यही नोट लिखा है। तो वहां पे ये डेफिनेशन दिया है, देखो प्रायर पीरियड आइटम्स मींस व्हाट, प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब पिछले साल के आइटम्स, पिछले नहीं तो उसके पिछले साल के। ऐसे भी हो सकता है कि 2 साल से आपको एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो 2017-18 का एरर आपने 2020-21 में डिटेक्ट किया और रेक्टिफाई किया, ऐसे भी हो सकता है। तो उस वक्त भी उस एरर में अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर कोई परचेस नहीं तो सेल नहीं तो परचेस रिटर्न नहीं तो सेल्स रिटर्न नहीं तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स में से कोई भी एक नॉमिनल अकाउंट आता है उसमें, तो वो एरर रेक्टिफाई करने के लिए मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट ही यूज करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब क्या, AS5 की भाषा में प्रायर पीरियड आइटम्स आर द मटेरियल इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज, इनकम नहीं तो एक्सपेंस विच अराइज। अब बहुत सारे लोग सेल्स एंड परचेस अकाउंट नहीं तो गुड्स रिलेटेड जो कुछ भी अकाउंट्स होते हैं उसको भी नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, इसकी बातचीत हमने यूनिट 1 में की थी बच्चों, बराबर है ना। हाँ, बट मैं तो रियल अकाउंट ही बोलूंगा। तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूं, आपको क्या बता रहा हूं, दीज 4 रियल अकाउंट्स, बराबर है, दीज 4 नहीं तो जो रियल अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं वो रियल अकाउंट्स प्लस सारे नॉमिनल अकाउंट्स आपके रेक्टिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो आप उसको रिप्लेस करोगे कौन से नाम से, पी एंड एल एडजस्टमेंट नहीं तो प्रायर पीरियड आइटम से। तो प्रायर पीरियड आइटम मतलब क्या, इनकम नहीं तो एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखता हूं मतलब इनकम ही बोलता हूं ना उसको मैं, हाँ, तो इनकम नहीं तो एक्सपेंस विच अराइज इन द करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, कोई गलती की आपने नहीं तो आपने पूरी तरह से उसको ओमिट किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर पीरियड। तो पिछले साल के कुछ पीरियड में गलती करने के कारण अगर कोई आइटम नेक्स्ट ईयर में अराइज हो जाता है, इनकम नहीं तो एक्सपेंस अराइज हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, तो उसको हम प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। जैसे कि पिछले साल में मैंने सेल्स अंडरकास्ट किया था, तो पिछले साल में मैंने उसको इनकम नहीं दिखाया, तो इस साल में वो इनकम दिखाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन उसको मैं प्रायर पीरियड आइटम बोलूंगा। तो उसको प्रायर पीरियड आइटम को आपको क्रेडिट करना है, आप सेल्स नहीं बोल सकते उसको, आप उसको प्रायर पीरियड आइटम बोलोगे। समझ में आया बच्चों। प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज in the current statement of profit and loss account together with the nature and amount in the manner that their impact on the current profit or loss can be perceived। आपको इस तरह से सेपरेटली प्रेजेंट करना है कि वो करंट ईयर का प्रॉफिट आपको अलग से दिखना चाहिए और ये आइटम के कारण कितने का प्रॉफिट चेंज हो रहा है वो आपको अलग से दिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना बैकग्राउंड इनफ है आपको कंसेप्ट समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम एक इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं है, एक 5 मिनट ही बाकी है। हम क्या करते हैं, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेकिन इलिस्ट्रेशन में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं।
तो आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज ये जो मैंने लेक्चर अभी दिया है आपको 1 घंटे का ऑलमोस्ट, वो आप आराम से पढ़ोगे, आराम से सुनोगे। ठीक है बच्चों? अगर एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीटेडली सुनो, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है, यही एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है। अभी तक आपको सब समझ में आ चुका है। यही एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है जिसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों यूज करना पड़ रहा है, वो मुझे देखना है। ठीक है? हाँ, तो ये इलस्ट्रेशन 8 हम कल करने वाले हैं, ये आप पढ़ के आओगे। समझ में आया बच्चों? ये आपको पढ़ना है। मैंने नोट्स की कॉपी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है आपको, तो कृपया करके, नहीं तो अगर आपके पास आईसीए का मॉड्यूल है तो उसमें भी आप इलस्ट्रेशन 8 चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों? हाँ, तो इलस्ट्रेशन 8 का जो कुछ भी वर्किंग नोट हमें बनाना है वो हम सिर्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज अभी भी 5 मिनट हमारे पास है। तो आप एक काम करना, ये इलस्ट्रेशन 8 एज अ होमवर्क पढ़ लेना, और फिर ये फॉर्मेट भी आप रेडी रखना जो कल के प्रॉब्लम में मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है? तो बच्चों, राइट डाउन इन योर नोटबुक सोल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 8, जहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही करने हैं। हर जर्नल एंट्री में कल डिस्कस करने वाला हूँ विद द कंसेप्ट विच आई हैव डिस्कस टुडे। तो ये कंसेप्ट फिर से रिपीट होने वाला है कल के लेक्चर में। ठीक है? लेक्चर नंबर 11 में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंसेप्ट वंस अगेन। ठीक है बच्चों? हाँ, और एक चीज, जो बच्चे डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हैं, वो आप कृपया करके चेक कर लो, और पहले सारे लेक्चर देख लो और उसके बाद ही ये लेक्चर नंबर 10 देखना। ठीक है? तो आगे बढ़ता हूं बच्चों। राइट डाउन सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। लिखा आपने? तो ये फॉर्मेट प्लीज बनाना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। लाइंस लगने वाले हैं मेरे को 42 लाइंस लगने वाले हैं। ठीक है? 42 लाइंस लगने वाले हैं। उसके बाद एक दो लाइन ब्लैंक छोड़ो फिर से। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाया आपने, आई होप आपने बनाया जर्नल का फॉर्मेट। 42 लाइंस लगने वाले हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सस्पेंस अकाउंट बनाने वाला हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा। सस्पेंस अकाउंट के लिए एक 5-6 लाइंस लगेंगे। हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड? 5 to 6 लाइंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है? देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ बच्चों। देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। ठीक है? जिसको ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स। उसके लिए भी एक 5-6 लाइन्स लगने वाले। तो ये 2 लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप रेडी करके रखना। कल हम डायरेक्टली इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है? और जो कंसेप्ट मैंने आज डिस्कस किया है वो कल भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है बच्चों। आज जो कुछ भी मैंने सिखाया वो समझना है टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उसमें से क्या क्या बाकी है, ये इलस्ट्रेशन 8 एक बाकी है। देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से 1 हमने कल के लेक्चर में सॉल्व किया था, 2 अभी भी बाकी है। ठीक है? 3 अभी भी पेंडिंग है, 4 अभी भी पेंडिंग है। तो टोटल 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है, टोटल 3 नहीं 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है अभी भी। और उसके बाद में एक 2-3 क्वेश्चंस अगर रिक्वायर्ड है तो ले लूंगा। ठीक है? फाइन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये एमसीक्यू कुछ यहाँ पे दिए हैं, आपको इंटरेस्ट है तो ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन अकाउंट्स में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता है। बट ये थ्योरी क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। ठीक है? उसमें ये 2 ही क्वेश्चंस है जो आपको 100% करने हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी भी बाकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, and we will continue with this illustration 8 tomorrow. If you like this lecture, please hit a like button and don't forget to comment and subscribe our channel. Thank you very much bachcho, thank you very much for watching me patiently, and I hope your Saturday will be fun day, and take a break tomorrow on Sunday and come with the same energy on Monday. On Monday we are going to start with this illustration 8. So God bless you, take care.